So I want to talk to you about the anointing of God increasing over your life. आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ परमेश्वर का अभिषेक जो आपके जीवन के ऊपर बढ़ता है। Yeah, the month of November is a good month because I believe it's going to be a month where the anointing of God, the presence of God increases over your life. नवंबर का महीना बहुत अच्छा महीना है क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का जो अभिषेक, प्रभु की उपस्थिति जो आपके जीवन के ऊपर बढ़ती जाएगी। Yes, all right. So we will begin with a very beautiful scripture, John chapter 14 verse 16. हम बहुत सुंदर वचन से शुरू करेंगे, यूहन्ना 14 अध्याय वचन 16। क्या है? Jesus said, यीशु ने कहा, don't cry रो मत because I'm going to go on the cross. क्योंकि मैं क्रूस पर जाने वाला हूँ, But after I rise up from the dead, लेकिन मैं मरे हुए में से जी उठने के बाद I'm going to give you another helper. मैं तुम्हें और एक मददगार देने वाला हूँ। Jesus promised you will get another helper. यीशु ने वादा किया कि तुम्हें और एक सहायक मिलेगा। Yeah, another helper of the same kind. और एक सहायक वैसा ही। Jesus said, I'm going to give you a helper just like me. यीशु ने कहा मैं तुम्हें सहायक देने वाला हूँ मेरे ही जैसा। Yeah, just like Jesus, He's going to give you a helper. यीशु के ही जैसे वो आपको सहायक देंगे। Okay, now I want you to realize अभी मैं चाहता हूँ इस बात को जानो, the day you receive Jesus जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया as your Savior अपना उद्धारकर्ता and Lord, और प्रभु के रूप में, that day this person has taken permanent residence inside your heart. उस समय इस व्यक्ति ने आपके हृदय के अंदर हमेशा के लिए रहने की जगह बना ली है। 1 Corinthians 3:16. पहला कुरिन्थियों 3:16। Do you not know that you are the temple of the Holy Spirit क्या आप नहीं जानते कि आप पवित्र आत्मा के मंदिर हो and that the Spirit of God lives inside you? और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है। Yeah, please write over there. I'm God's temple and the Spirit of God is in me. वहाँ पर लिख कर लीजिए मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ और परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। Yeah. So we have so many temples of God over here. तो यहाँ पर हम परमेश्वर के बहुत सारे मंदिर है। कोई आमीन नहीं बोल रहा है. आमीन। After we finish the service, ये सभा समाप्त करने के the बाद temple is going to go to different places. ये मंदिर जो है अलग अलग जगह पर जाने वाला है। Some will go to Dadar, कुछ लोग दादर जाएंगे, some will go to Kalyan, कुछ कल्याण जाएंगे, some will go to Andheri East, कुछ अंधेरी पूर्व में जाएंगे, some will go to Lokhandwala. कुछ लोखंडवाला में जाएंगे। I don't know where are you going to go, मुझे नहीं पता आप कहाँ कहाँ जाने but you वाले are a temple of God carrying the presence of God. लेकिन आप परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर की उपस्थिति को आप लेकर चलते हो। If you understood what I said, I want you to say a big amen. यदि आपको समझ में आया जो मैंने कहा तो आप जोरदार आमीन कहिए। Amen, amen. Are you with me? Okay, now I want you to write. मैं चाहता हूँ आप लिख कर लो। Holy Spirit takes residence in you to help you. परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर रहता है आपकी मदद करने के लिए। If you cannot lift 50 kgs, यदि आप 50 किलो उठा नहीं सकते हो what should you do? तो आपने क्या करना है? Ask for help. मदद मांगना है। Whatever you cannot do in life, there is one person inside you who you cannot see, but he is inside you because the Bible says so and he can help you. आपके जीवन में जो भी बात आप नहीं कर सकते उसके लिए आपको याद रखना आपके अंदर एक व्यक्ति है और बाइबल कहती है वो आपके अंदर है और वो आपकी मदद कर सकता है। Yeah. Okay, so Holy Spirit is inside you. तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। But today what I want to talk to you is लेकिन आज मैं आपसे क्या बात करना चाहती हूँ? Holy Spirit coming upon you. पवित्र आत्मा आपके ऊपर आते हैं। Did Jesus say the Spirit of God is किधर? बोलो ना। यीशु ने क्या कहा? परमेश्वर का आत्मा कहाँ पर है? In me or upon me? मेरे अंदर है कि मेरे ऊपर है? मेरे ऊपर। The moment the Holy Spirit comes upon you, जिस क्षण पवित्र आत्मा आपके ऊपर आते हैं, you will become a blessing to thousands of people. आप हजारों लोगों के लिए आशीष का कारण बनोगे। Now the question. अभी सवाल ये है, how does the anointing of God over you increase? आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक बढ़ता कैसे है? बढ़ता कैसे? How does it increase? वो बढ़ता कैसे है? Okay, number one, how does this increase? पहला नंबर, वो बढ़ता कैसे है? Number one, पहला, when you hear the word of God, जब आप प्रभु का वचन सुनते हो, the anointing will increase. अभिषेक बढ़ेगा। Ezekiel 2:2. यहेजकेल 2:2, Get ready. तैयार हो जाओ। As you are hearing me, जैसे आप मुझे सुन रहे हो, the Spirit of God will come upon you. परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आएगा। Yeah, you be ready. तो तैयार हो जाओ। Then the Spirit entered me. उसके बाद आत्मा मेरे अंदर उसने प्रवेश किया। When did it enter? कब वो प्रवेश किया? When I heard. जब मैंने सुना। When I heard him, जब मैंने उसे सुना, Spirit came. आत्मा आ गई।
Tonight, आज की रात as you are hearing me, जैसे आप मुझे सुन रहे हो, the Spirit of God will come upon you. परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आएगा। Let me give you a very good example. मुझे बहुत अच्छा उदाहरण आपको देने दो। Very good. You will be very happy. बहुत अच्छा उदाहरण, आप बहुत खुश हो जाओगे। Acts 10:44. प्रेरितों 10:44। Peter was speaking about Jesus. पतरस जो है यीशु के बारे में प्रचार कर रहा था, And as his words were going, और जैसे उसके शब्द निकल रहे थे बाहर, when it was falling on people, जब वो जाकर लोगों के ऊपर गिर रहे थे, it was like Holy Spirit was falling over them. तो मान लो पवित्र आत्मा उनके ऊपर गिर रहे थे। Now, as I am talking to you, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, the Spirit of God will fall on you. परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर गिरेगा। Okay, I was in a meeting in Delhi. मैं दिल्ली में मीटिंग में था, So I went, I took the mic. तो मैं गया, मैंने माइक पकड़ा, I didn't even say anything. मैंने कुछ भी नहीं कहा था, And I saw people with demons, they were coming like that. और मैंने देखा दुष्ट आत्मा से भरे हुए लोग ऐसे कूद-कूद कर आ रहे थे। Yeah. I didn't even say anything. मैंने कुछ कहा भी नहीं था, Then what was happening? I was only breathing. तो क्या हो रहा था, मैं सिर्फ श्वास ही ले रहा था। Have you heard Jesus said, receive the Spirit and he just breathed over them? क्या आपने कभी सुना है कि यीशु ने कहा आत्मा को स्वीकारो और उस पर श्वास फूका सिर्फ? A time will come in your life, you can just breathe and the Spirit of God will just fill the place. समय आएगा आपके जीवन में जब आप श्वास फूकोगे और परमेश्वर का आत्मा पूरी जगह को भर देगा। Spirit of God will just come over the whole place. पूरी जगह के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आ जाएगा। Yeah. So as I speak, तो जैसे मैं बात करता हूँ, the Spirit of God will fall upon you. परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर गिरेगा। Yeah. Number 2, दूसरा, how does the anointing increase? अभिषेक बढ़ता कैसे है? You have to be in the right place. आपको सही जगह पर होना है उसके लिए। You have to be in the right place. आपको उसके लिए सही जगह पर होना जरूरी है। Today, where are you? आज आप कहाँ पर हो? Right place. सही जगह पर हो आप। You're not in front of your TV. आप आपके टीवी के सामने नहीं बैठे हो। You didn't go to Chowpatty today. आप आज चौपाटी नहीं गए घूमने। You didn't go to the mall today आज आप मॉल में नहीं गए to buy some nice clothes. कुछ अच्छे कपड़े खरीदने के लिए। Ezekiel 3:22. यहेजकेल 3:22। Yeah, the Spirit of God told Ezekiel to go to a place. परमेश्वर की आत्मा ने यहेजकेल को कहा एक स्थान पर जाने के He लिए। said, "Arise, उसने कहा जाग जा, go to the place that I will talk to." जो जगह मैं कहूंगा उस जगह पर तू जा। No. Go to the place. Go to church. कलीसिया जा, That Lambu pastor will talk to you. वो लंबू पास्टर तुझसे बात करेंगे। Amen नहीं बोल रहे हो? Church is not time pass. कलीसिया टाइम पास नहीं है। Church is the place where the anointing of God will come upon you. कलीसिया ऐसी जगह है जहाँ पर परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आएगा। आपके ऊपर आएगा, यीशु के नाम में it will come, he will come upon you. वो आपके ऊपर आएगा, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा। By the way, कोविड खत्म हो गया है। आमेन। वो जूम मीटिंग का पावर खत्म हो गया है अभी। Go to the place. जगह पर जाओ। Yeah, go to the place. Sunday, go to the house of God. रविवार के दिन उस जगह पर जाओ, प्रभु के घर में जाओ। घर में जाओ। आमेन। Because that's where the anointing will fall. क्योंकि वहीं पर अभिषेक गिरने वाला है। You may say, no, I'll sit in my TV, with my TV. You will speak. You know, we have evening Zoom, we have. Na? So some people say, I like pastor on the Zoom. तो आप कहोगे मैं मेरे टीवी के सामने बैठता हूँ, पास्टर आप टीवी में बात करो, जूम पर बात करो, मुझे जूम बहुत अच्छा लगता है। Yeah, because you look so handsome over there. क्योंकि वहां पर आप बहुत अच्छे दिखते हो। Yeah, good, huh? Praise God. That was a nice reason. But I want to tell you, come to the right place because that's where God will talk to you in the mighty name of Jesus. वो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप सही जगह पर आओ जहाँ पर प्रभु आपसे बात करेंगे यीशु के नाम में। And I promise you, और मैं आपको वादा करता हूँ tonight, आज की रात, because you came to the right place, क्योंकि आप सही जगह पर आए इसलिए God will speak to you प्रभु आपसे बात करेंगे and the Spirit of God will come upon और you. परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आएगा। Verse 24. वचन 24। Because Ezekiel went to the right place, क्योंकि यहेजकेल सही जगह पर गया इसीलिए suddenly the Spirit of God entered him. अचानक से परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर प्रवेश किया। Have you heard people saying, मैं वो घर के अंदर गया और मुझे पता नहीं क्या हो गया, मुझे ऐसा लगा कुछ अंदर आया. आपने कभी लोगों को ऐसे कहते हुए सुना है मैं उस घर में गया पता नहीं कुछ अंदर आ गया ऐसा लगा। Then people say, you come to our church, Pastor Vijay is there, he'll drive it out. फिर क्या लोग कहते हैं आप हमारी कलीसिया में आओ, पास्टर विजय वहां पर है, उसे बाहर निकाल देंगे। अभी वो दिन चेंज हो रहा है, अभी मैं नहीं भगाने वाला, तुम भगाने वाले हो उसको. अभी वो दिन बदल गए, अभी मैं नहीं भगाऊंगा, The आप भगाने season वाले। is changing. मौसम बदल रहा है, Season is changing. मौसम बदल रहा है। You are going to do great works for the glory of God. आप परमेश्वर की महिमा के लिए महान बातें करोगे।
God is going to use you. प्रभु आपका इस्तेमाल करेंगे। Look at that first word. वो पहला शब्द देखिए, Then. Tab. Kab. कब तब आता है? जब आप सही जगह पे रहते हो। यस। नहीं, मैं लेता हूं गोदड़ी, सोता हूं, तू सोते ही रहे, नागो आएगा तुझे मिलने के लिए। On Sunday, रविवार के दिन is not mutton day. वो मटन का दिन नहीं है। मैं नहीं बोल रहा। Sunday is not chicken day. संडे जो है चिकन डे नहीं है। Sunday is the Lord's day. I'm going to be in the house of God. रविवार का दिन परमेश्वर का दिन है और मैं परमेश्वर के घर में रहने वाला हूँ। You should bless the name of मुझे God. ऐसा लगता है अपने प्रभु के लिए जोरदार ताली Praise Him. उसकी स्तुति करें। Number 3. तीसरा नंबर, You know God loves to add. आपको पता है प्रभु को अच्छा लगता है जोड़ना। Oh, come on. How many fathers are over here? You would like to add to your daughters, you know, means तेरे बच्चे के पास अगर 4 जूते हैं, समझो 50 जूते, because if I would have a daughter, she would have had 50. यदि आप पिता हो और आपकी बेटी के पास 50 जूते हैं, और अगर मेरी बेटी होती तो उसके पास भी होते। हाँ, 50 तो रहता ही। So our God likes to join. तो हमारे प्रभु को जो जोड़ना अच्छा लगता है। If father think how to give more, यदि पिता सोचते कि और कैसे देना है, I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, get ready. तैयार हो जाओ। Before this year end, ये साल खत्म होने से पहले there's an addition of grace, anointing coming in your life in the name of Jesus. आपके जीवन में अनुग्रह अभिषेक का जोड़ा जाना आ रहा है यीशु के नाम में। Okay. Matthew 25 verse 29. मत्ती 25 अध्याय वचन 29। Some of you have been very faithful to God. आप में से कुछ लोग प्रभु के प्रति बहुत विश्वास योग्य रहे हो। Whatever God gave you, you have been using it. जो भी प्रभु ने आपको दिया आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो। Yeah. Look here. यहाँ पर देखिए, Everyone who has हर एक व्यक्ति जिसके पास है and who values the blessing, the grace, the anointing of God over their life, और जो प्रभु की आशीष है, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु के अभिषेक को मूल्य देता है अपने जीवन के and the ऊपर, gifts which God has given, और जो वरदान प्रभु ने उन्हें दिए हैं, and very important, और बहुत महत्व का, they have used them wisely. बुद्धिमानी से उनका इस्तेमाल करता है। Get ready. तैयार हो जाओ। More will be given to them. और ज्यादा आज दिया जाएगा। लेकिन वो लोग तैयार मत होना जिन्होंने प्रभु का अनुग्रह, गिफ्ट, एबिलिटीज सबको लिया और साइड में रखा और इस्तेमाल नहीं किया। इट्स नॉट फॉर देम, उनके लिए नहीं है, बट एनीबॉडी लेकिन जो कोई भी who has celebrated the grace of God over their lives, जिन्होंने अपने जीवन के ऊपर प्रभु के अनुग्रह का जश्न मनाया, used it to bless people, लोगों को आशीषित करने के लिए उसका इस्तेमाल किया है, get ready, तैयार हो जाओ, because God is going to give you something more. क्योंकि प्रभु आपको कुछ और देने वाले हैं। Let me help you how this goes. मुझे आपको मदद करने दो, ये कैसे होता है। This goes from one level to another level. ये एक स्तर से दूसरे स्तर पे जाता है। You'll understand. For example, उदाहरण के लिए Jesus said in Mark chapter 16 verse 18, यीशु ने मरकुस 16 अध्याय वचन 18 में कहा, whoever is a believer, जो कोई भी विश्वासी है, lay hands on the sick बीमारों पर हाथ रखो and they will recover. और वो चंगे हो जाएंगे। Now God is saying, because you have been faithful, और अभी प्रभु कह रहे क्योंकि तू विश्वास योग्य रहा है, I'll take you to one more big step. मैं तुझे और एक बड़े कदम की ओर ले जाऊंगा। कितना अच्छा लगेगा ना, आप किसी से बात कर रहे हो चंगाई के बारे में और वो चंगा हो जाए। आमीन। This is another level. ये और एक स्तर है। You talk to a sick person आप बीमार व्यक्ति से बात कर रहे हो and they are saying, I feel good. और वो कह रहे मुझे अच्छा लगने लग गया है। आमीन। That's another level. ये अगला स्तर है। But लेकिन what about one more level? और एक स्तर के बारे में क्या? Your very presence brings healing to sick people. आपकी सिर्फ उपस्थिति है बीमार लोगों के शरीर में चंगाइयां लाती है। Do you know in the Bible there's a man called Peter? आपको पता है बाइबल में एक पतरस नाम का एक व्यक्ति है। So people used to bring all the sick people, line them up. लोग जो है हर एक बीमार लोगों को लेकर आके वहां पर लाइन लगाते थे बाजार में सब लोग, और उसको सिर्फ बोलते हैं आप चलना ऐसा। So when his shadow used to fall, जब उसकी परछाई उन पर गिरती थी, sick people were getting healed. बीमार लोग चंगे हो जाते थे। आमीन।
So when I say God will add, जब मैं कह रहा हूँ प्रभु जोड़ेंगे, इसका मतलब what God gave you before, it will become so easy, so easy, so easy. People will wonder ये क्या है, इसके साथ है क्या? पहले करता था लेकिन इतना easy नहीं होता था. But now it's so easy. It's like maska. It's like it just happens. It just happens. And I pray that your anointing will increase. God will give you a bit more addition in Jesus name. जो प्रभु ने आपको पहले दिया था और आसान हो जाएगा, और आसान हो जाएगा, और लोग कहेंगे ये पहले तो करता था लेकिन अभी और बहुत आसानी से कर रहा है, और परमेश्वर का अभिषेक, प्रभु की उपस्थिति आपकी जो है जोड़ दी जाएगी और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. Have you seen some people playing guitar? First they are, ऐसा देख देख के ऐसा करते रहते हैं. बाद में थोड़ा सा और, बाद में एक टाइम आता है. Have you seen that? क्या आपने देखा है? बाजू वाले को बोलना तेरा ऐसा कुछ होने वाला है. पास्टर मेरा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि मैं कुछ ही नहीं कर रहा हूँ. कुछ नहीं कर रहे हो तो चालू करो यीशु के नाम में. Amen. Start using what God has given you. करना शुरू करो, प्रभु ने जो आपको दिया उसका इस्तेमाल करना शुरू करो. Use what God gave you. जो प्रभु ने आपको दिया उसका इस्तेमाल करो. Serve people. लोगों की सेवा करो. Okay, somebody asked me, how do I know what gift I have? किसी ने मुझसे पूछा मुझे कैसे पता चलेगा मेरे अंदर क्या वरदान है? Simple. बहुत आसान, सेवा करो. सेवा करो. अगर मैंने गिटार लेके अभी आपको वर्शिप लीड करना शुरू किया तो कितने लोग बैठोगे, कितने लोग जाओगे? हंस क्यों रहे हो? आप लोग सब जाओगे ना? नहीं जाओगे क्योंकि मुझे गिटार बजाते नहीं आता. तो मैंने आपकी सेवा गिटार के साथ नहीं कर, लेकिन मैं तेरी सेवा इसके साथ कर सकता हूं. Yes. क्योंकि मैं जब इसे हाथ में लेता हूं मेरे अंदर जो है ना वो सब बाहर आता है. Amen. When I take this in my hand, all that I have, it comes out. जब मैं इस माइक को हाथ में लेता हूं तो जो भी मेरे अंदर है वो बाहर आता है. Yeah, if I take guitar, nothing is there. यदि मैं गिटार लूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा. So I know guitar is not my gifting. तो मैं जानता हूँ गिटार मेरा वरदान नहीं है. Yeah, so when I use this, तो जब मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ things begin to come out. चीजें बाहर आना शुरू हो जाती है. And some of you will begin to message me, Pastor, ये हो गया आज, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. So what you are telling me, Pastor, this is your gift, this is your gift, this is your gift, this is your grace, 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 this is your grace. आप में से कुछ लोग जो है मैसेज करने लग जाओगे मुझे और कहोगे पास्टर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ. इसका अर्थ आप क्या कह रहे हो? प्रभु आपका पास्टर आपका अनुग्रह है, आपका अनुग्रह है, आपका अनुग्रह है. हो गया? ओके. मदर टेरेसा के कितने लोग जानते हो? वो जब बीमार को हाथ लगाती है ना, उसके अंदर जितना भी हो सब बाहर आता है. Yes. जो अंदर है ना वो बाहर आने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है. करो. Amen. करो. 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 Do something. कुछ तो करो. Then God will give you more. उसके बाद प्रभु आपको और देंगे. Yeah. By the way, get excited because next year ये एक ही है ना वर्ड. एक ही शब्द है ना यहाँ पर लिखा हुआ. हम लोगों को प्रभु और एक वर्ड ज्वाइन करने वाला है यहाँ पर. और एक शब्द वहाँ जुड़ने वाला है. इट इज कॉल्ड डबल फ्रूटफुलनेस. उसे कहा गया है दुगनी फलवंतता. एडवांस में बोल दिया मैंने तुम्हें. पहले बता दिया. Number 4. चौथा नंबर. Some of you, God is going to give you new assignment. आप में से कुछ लोगों को प्रभु नया काम देने वाले हैं. काम नहीं, हाँ चलो ठीक है, वो जो भी आप जो भी बोलते हो बोल लो. You're going to get a new assignment. आपको एक नई बात प्रभु देंगे करने के लिए. नहीं, हाँ वो जो भी है बोल दो. 2023 for this church. 2023 के लिए इस कलीसिया के लिए It will be a new beginning. नई शुरुआत होने वाली है. If God tells you start a business. यदि प्रभु आपसे कहते हैं व्यापार शुरू कर. If God tells you यदि प्रभु आपसे कहते हैं तो start business. व्यापार शुरू करने के लिए. Then anointing will come upon you. तो अभिषेक आपके ऊपर आएगा. If God tells you go and serve these people. यदि प्रभु आपसे कहते हैं जाकर इन लोगों की सेवा कर. An anointing will come upon you. तो अभिषेक आपके ऊपर आ जाएगा. If God tells you help these people. यदि प्रभु आपसे कहते हैं इन लोगों की मदद कर. An anointing will come upon you. अभिषेक आपके ऊपर आएगा. 2023 is a year where you will be given new, fresh
assignment from the Almighty God. 2023 ऐसा साल होगा जहां पर परमेश्वर की ओर से नया और ताजा काम मिलेगा प्रभु की ओर से आपको करने के लिए। God will say, do this, प्रभु कहेंगे ये कर, do this, 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 ये कर, do this. ये कर। Matthew 28 verse 90. मत्ती 28 अध्याय वचन 19। Yeah, you all know this famous verse. ये मशहूर वचन आप सब जानते हो। Jesus is saying, go. यीशु कहते जाओ। आदेश दिया ना, Yes. उसके बारे में बात कर रहा हूं। तुम्हें भी डायरेक्ट आदेश आने वाला है स्वर्ग से। Amen. जाओ, Amen. जाओ, 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 करो ये, जाओ, करो ये, जाओ, go, do this. जाओ और ये करो। But to go and do it, you will require a new, fresh anointing. लेकिन जाकर करने के लिए आपको एक नया और ताजा अभिषेक की जरूरत पड़ेगी। Yeah, that's why the anointing will increase. इसीलिए अभिषेक बढ़ने वाला है। Yeah, you're with me? आप मेरे साथ हो? Number 5. पांचवा। Okay, now let me give this because this is so important. अभी मुझे आपको ये देने दो क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। Oh, yeah. Oh. Okay, number 5. पांचवा, How many of you talk and nobody listens to you? आप में से कितने लोग ऐसे हैं आप बात करते हो लेकिन कोई आपकी सुनता ही नहीं है? Very good. Pastor, I talk, nobody listens to me. पास्टर मैं बात तो करता हूँ लेकिन कोई सुनता ही नहीं। Okay. I want to tell you something. मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। There's an anointing एक अभिषेक है which is called hear him anointing. जिसे कहते उसे सुनो वाला अभिषेक। समझाता हूं कितने बार मम्मी लोग चिल्लाते हैं, अरे किधर गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, मम्मी लोग, प्रभु आपको नया अभिषेक देने वाला है। Amen. How it will be na, if you give one shout and 100 people come to help you. कैसे होगा ना, यदि आप एक बार पुकारोगे 100 लोग आपके सामने आके खड़े कैसे नहीं, हाँ, अच्छा रहेगा। मेरी ये प्रार्थना है आपके सबके लिए, अगर आप एक आवाज मारोगे ना, आपको 100 लोग आके मदद करना चाहिए। लेकिन अभी नहीं हो रहा है, राइट? सही बोल रहा हूँ ना? Because you need an anointing. क्योंकि आपको अभिषेक की जरूरत है। And especially people who do business. और खास करके वो लोग जो व्यापार करते हैं, When you talk, जब आप बात करते हो everybody should listen. सबने सुनना चाहिए। I need that anointing. मुझे वो अभिषेक चाहिए। When I talk, जब मैं बात करूंगा whole church should listen. पूरी कलीसिया ने वो सुनना चाहिए। In your family, आपके परिवार में when you speak, जब आप बात करोगे family should hear you. परिवार ने आपको सुनना चाहिए। In your society, आपके समाज सोसाइटी में when you speak, जब आप बात करोगे people should, they may not like you, but they'll hear you. लोग आपको शायद पसंद नहीं करेंगे लेकिन आपको सुनेंगे। Listen. It's an anointing. Yeah. Anointing means ability of God, okay? अभिषेक का मतलब परमेश्वर की क्षमता। उसको हम नहीं करके नहीं बोल सकते। Yes. I may not like it, but I have to hear you. शायद मुझे अच्छा नहीं लगेगा लेकिन मैंने आपको सुनना है। Because if I don't hear, it will not be well. क्योंकि मैं सुनूंगा नहीं तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं, it will not be well. अच्छा Okay? नहीं होगा। Yeah. नंबर कौन सा लिखा आपने? 5. Okay, let me give you. Luke 9:35. लूका 9 में 35। Jesus was getting water baptized. यीशु का पानी का बपतिस्मा हो रहा था। Yeah, please write. लिख कर लीजिए। Obedience is very important. आज्ञा पालन बहुत महत्व का है। Okay, so Jesus is getting baptized. यीशु का बपतिस्मा हो रहा है, Comes out of the water. पानी में से बाहर आते हैं, Heaven opens. स्वर्ग खुलता है, Holy Spirit comes down. पवित्र आत्मा आते हैं अभी नीचे, And then a voice comes. फिर एक आवाज आती है। What is the voice saying? आवाज क्या कह रही है? This is my dear son. ये मेरा प्रिय पुत्र है। This Jesus is my dear son. ये यीशु जो है मेरा प्रिय पुत्र है। And then he says 2 words. फिर आगे 2 शब्द कहता है, From this second onwards, इस क्षण से आगे hear him. उसे सुनो। अगर प्रभु ने मुंह खोलकर तेरे ऊपर अगर ये बोल दिया ना, मुंबई, hear him. मुंबई, उसे सुनो। If God opens his mouth and says, family, hear him.
यदि प्रभु अपने मुंह को खोलकर कहे, परिवार उसे सुनो। If God opens his mouth and says, society, hear him. यदि प्रभु अपने मुंह को खोलकर कहे, सोसाइटी उसे सुनो। If God opens his mouth and speaks to the church and says, hear the pastor. यदि प्रभु अपने मुंह को खोलकर कलीसिया से कहे, पासवान को सुनो, तो होगा। जितने ऐसे भी बैठे रहेंगे ना, वो सब बोलेंगे, हाँ बोलो बोलो, क्या बोलते बोलो। It's an anointing. वो अभिषेक है। You should pray आपने प्रार्थना करना चाहिए and tell the Lord, और प्रभु से कहना है, give me this anointing. मुझे ये अभिषेक दो। Yeah. Not to do wicked things, but to do things for the glory of God. बुरी बातें करने के लिए, लेकिन ऐसी बातें करने के लिए जहां पर प्रभु को महिमा मिले। Yeah. Okay. Now, parents, I will teach you one prayer. माता पिताओं, मैं आपको एक प्रार्थना सिखाऊंगा, But first you have to learn to be obedient to God. लेकिन पहले आपने सीखना है प्रभु के प्रति आज्ञा पालन करना। Yeah, because this will work for them. क्योंकि वो उनके लिए काम करेगा। I pray for my son. मैं मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करता हूँ। When he calls, जब वो पुकारता है, at least 2,000 people will say yes. कम से कम 2000 लोग हाँ कहेंगे। Now, you may not agree, that's your problem. आप शायद सहमत नहीं होंगे, वो आपकी समस्या है। For me, it's not a problem. मेरे लिए कोई समस्या नहीं, Because it's a revelation to me. क्योंकि मेरे लिए प्रकाशन है। Amen. कितने लोग बात करते हैं और लोग कोई सुनता नहीं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जब वो मुंह खोलते हैं सब सुनते हैं। Amen. And I pray that anointing would come upon you so that when you say something, people will hear you in Jesus' mighty name. तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो अभिषेक आपके ऊपर आए, ताकि जब आप कुछ कहो लोग आपको सुने यीशु के नाम में। Some husbands need this anointing with respect to their wives. कुछ पतियों को अपनी पत्नी के लिए इस अभिषेक की जरूरत है। पत्नी अभी बोलते क्या छोड़ो ना, क्या किसने बुलाया? पत्नी, हाँ जानते हैं हाँ। No value in your word, no weight नहीं। आपके शब्दों में कोई वजन नहीं है। वजन नहीं, वजन होना है शब्द में। Yes. या तो तुम्हारा जब शब्द हाथ में गिरता है ना, लोग ऐसे सिंक होना चाहिए। जब आपका शब्द हाथ में गिरे तो लोग जो है नीचे झुकने चाहिए। हाँ, झुकने, इतना झुकना चाहिए। Now nobody cares. Whatever you say what you want. अभी किसी को फर्क नहीं पड़ता, जो भी तुमको बोलना है बोलते रहो। बोलते रहो। I pray मैं प्रार्थना करता you हूँ would get that anointing that when you speak, people will hear you in Jesus' mighty name. आपको अभिषेक मिले, जब आप बात करोगे तो लोग आपको सुने यीशु के नाम में। All right. The last one. आखिरी का, How many of you would like to be a man of peace? कितने लोगों को एक शांति का व्यक्ति बनना अच्छा लगेगा? कोई कोई लोगों के हाथ ऊपर नहीं जा रहे, झगड़ा करना है क्या बाबा? नहीं ना। We are called to be peacemakers. हमें शांति बनाने वाले बनने के लिए बुलाया गया है। Please write over there. You are called to be a peacemaker. लिख कर लो, आपको शांति बनाने वाले बुलाया गया है। I like this verse in Romans chapter 12 verse 21. रोमियो 12 अध्याय वचन 21 मुझे बहुत अच्छा लगता है। Romans 12:21. रोमियो 12 में 21, Overcome evil with good. बुराई के ऊपर भलाई से जीत पाओ। Yeah. How many of you would like in a family there is a lot of झगड़ा happening आप में से कितने लोगों को अच्छा लगेगा एक परिवार में बहुत झगड़ा हो रहा है and sends you और प्रभु आपको वहां भेजते हैं and you speak something. और आप कुछ बोलते हो? आपको पता है कि कभी-कभी हम कुछ बोलते हैं, हमको ही नहीं समझता हम क्या बोल रहे हैं। यस। अच्छा, आप लोगों को नहीं हुआ है, मेरे साथ हुआ है। मैं बाद में सोचता हूँ क्या क्या बोला प्रभु मैंने, क्यों बोलने के बाद कैसा तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और पूरा जो झगड़ा है घर में सब शांत हो जाता है। वो अभिषेक तुम्हारे ऊपर आने वाला है। Malachi chapter 4 verse 6. मलाकी 4 अध्याय वचन 6। Yeah, there's fighting in your company. आपके कंपनी में लड़ाई चल रही है, You need an anointing. आपको अभिषेक की जरूरत है। Yeah. Your words can turn the hearts. आपके शब्द हृदयों को मोड़ सकते हैं। I don't know, in the book of Matthew chapter 5 it is written, मत्ती की 5 अध्याय में लिखा है, Blessed are the peacemakers. धन्य है शांति बनाने वाले। Tell your neighbor, that's your call. अपने पड़ोसी से कहो, वो आपकी बुलाहट है। Blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of
God. क्योंकि धन्य है आशीष शांति बनाने वाले, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। Who are you? आप कौन हो? God is your father, man. परमेश्वर आपके पिता है। Yeah, you are a child of God, son of God. आप परमेश्वर के बच्चे हो, बेटे हो। Yeah, and your job is to bring peace. और आपका काम है शांति लाना। लाना, शांति निकालना नहीं, शांति लाते हम। Amen. जहां पर भी जाओगे ना, you should have, that's why I said you should have the ability to turn hearts. इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपके अंदर वो क्षमता है हृदयों को मोड़ने की। हाँ, वो ऐसा नहीं अरे प्लीज 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 मान जाना मान जाना मान जाना मान जा। पहले मेरा ऐसा एक केस आया था, तो मैं वो पति को पूछा, तेरे पैर पकड़ो, क्या पकड़ो, मान जाना। प्रभु ने मुझे बोला, उठ वहां से, उठ उठ या। तो मैंने बोला, प्रभु क्या? प्रभु ने कहा, वो ऐसे रिक्वेस्ट से नहीं होता है, उसके लिए एक अभिषेक चाहिए। It doesn't work on requests. विनती से काम नहीं चलता। Do you know there is a phrase in the Bible, it says, you shall be repairer. आप रिपेयर करोगे, repairer of broken walls. टूटी हुई दीवारें। Tell me, what are you going to repair? आप मुझे बताओ, आप क्या सुधारने वाले हो? रिक्वेस्ट करके। आपको पता है काउंसलिंग कितने करते लोग? आज अब भी मेरे को किसी ने बोला काउंसलिंग सेमिनार है, आप आओ। मैं बोला मुझे नहीं आने का, मुझे अभिषेक चाहिए। I need an anointing. मुझे अभिषेक चाहिए। Once the anointing comes, एक बार अभिषेक जब आता है, with love, प्रेम के साथ, you can conquer any heart. आप किसी भी दिल के ऊपर जय पा सकते हो। This anointing was over a man called Elijah. ये अभिषेक एलिया नाम के व्यक्ति के ऊपर था। सुनो, ये वो आदमी है जिसने स्वर्ग का दरवाजा खोल के आग नीचे लाया, लेकिन उतना ही लाया नहीं, उसी दिन पूरे इज़राइल का जो दिल है ना, उसने प्रभु की ओर मोड़ दिया। Full Israel turned their heart to God. पूरे इज़राइल ने अपना हृदय प्रभु की ओर मोड़ा। और ये अभिषेक यूहन्ना जो बपतिस्मा देता था ना, उसके ऊपर था। यीशु के आने के पहले यूहन्ना बपतिस्मा के ऊपर ये अभिषेक था, जिसके कारण लोगों का दिल यीशु की ओर मुड़ रहा था। क्यों ना तू परिवारों को जोड़े, क्यों ना तू लोगों को प्रभु के साथ जोड़े, क्यों ना तू लोगों को दिल को जोड़े। Is this church going to grow? क्या ये कलीसिया बढ़ने वाली है? Oh, come on. You know why? पता है क्यों? Because the anointing to turn hearts is going to come upon you. क्योंकि अभिषेक हृदयों को मोड़ने का आपके ऊपर आने वाला है। Is your business going to grow? क्या आपका व्यापार बढ़ने वाला है? Yeah. हाँ, बढ़ने वाला है। Because God will give you the anointing to turn hearts. क्योंकि प्रभु आपको अभिषेक देंगे हृदयों को मोड़ने का। Yeah. Not for you, but for His glory. आपके लिए नहीं, लेकिन प्रभु की महिमा के लिए। Will you be effective in your workplace? क्या आपके काम के जगह पर आप प्रभावशाली होंगे? Yeah. हाँ। Why? क्यों? Because you have the anointing to turn the hearts of people. क्योंकि आपके पास अभिषेक है लोगों के हृदयों को मोड़ने के लिए। Difficult situation will become easy because you have the anointing to turn the hearts वो of कठिन people. परिस्थितियां जो है आसान हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास अभिषेक है लोगों के हृदयों को मोड़ने के लिए।